اور 19 نمبر کے شلوک میں ہے نہ تسیہ پرتما استی، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کا کوئی روپ نہیں ہے۔ سوتا ستارا اپنشد 4 نمبر کے ادھیائے اور 20 نمبر کے شلوک میں ہے کہ اس کو کوئی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس کو کوئی سمجھ، اس کو گراسپ کر ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنشد کے اندر بہت ہی پیور فارم میں توحید اور اس کے آکار نہ ہونے کی بات صاف طریقے سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم وید شاستر میں دیکھیں، یجروید چیپٹر 32 32 نمبر کے ادھیائے اور 3 نمبر کے شلوک میں ہے نہ تسیہ پرتما استی، کہ اس کا کوئی روپ نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کی کوئی پرتما بن ہی نہیں سکتی۔ یجروید 40 نمبر کے ادھیائے اور 8 نمبر کے شلوک میں ہے کہ اس کا کوئی شریر نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں۔ یجروید 40 نمبر کے ادھیائے اور 9 نمبر کے شلوک میں ہے اندھتمہ پریوشنتی یا سمبھوتی مپاستے، کہ جو کوئی پراکرتی کی پوجا کرتا ہے وہ گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہا ہے۔ اندھتمہ پروشنتی یا سمبھوتی مپاستے، اور جو کوئی پراکرتی سے کوئی چیز بنائے اور اس کی پوجا کرے تو وہ اور گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں تو گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہے ہیں، اگر ہم زمین کی پوجا کر رہے ہیں تو گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہے ہیں، اگر ہم پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں تو گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہے ہیں، اگر ہم پراکرتی کی پوجا کر رہے ہیں تو ہم گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر پراکرتی سے ہم کوئی چیز بنائیں، مٹی سے کوئی چیز بنائیں اور اس کی پوجا کریں، لکڑی سے کوئی چیز بنائیں اور اس کی پوجا کریں، پتھر سے کوئی چیز بنائیں اور اس کی پوجا کریں، آگ سے کوئی چیز بنائیں اور اس کی پوجا کریں، تو اور گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وید شاستر، یہ ہے یجروید 40 نمبر کی ادھیائے اور 9 نمبر کا شلوک اندھتمہ پروشنتی یا سمبھوتی مپاستے۔ رگ وید وید کی کتابوں میں مقدس کتاب ہے۔ رگ وید کے اندر بھی بک 1 چیپٹر نمبر 164 164 اور 46 نمبر کے شلوک میں ہے کہ اس ایک خدا کو رشیوں نے، سیجز نے مختلف کئی ناموں سے پکارا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اس ایک خدا کو کئی ناموں سے رشیوں نے پکارا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ریسرچ کریں تو رگ وید کے اندر بک 2 ہم نمبر 1 اور 3 نمبر کے شلوک میں یا اس ہم کے اندر تقریباً 33 ایسے گن ہیں، 33 ایسے نام ہیں جو اس کے گن ہیں، اس کے طور پر اس کو پکارا جاتا ہے۔ جو کہا گیا کہ رشیوں نے الگ الگ نام سے اس کو پکارا ہے۔ رگ وید بک 2 ہم 1 اور 3 نمبر کے شلوک میں ایک جو گن اور صفتی نام ہے، گناتمک نام ہے، ایٹریبیوٹیو نیم ہے، وہ ہے برہما۔ برہما کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی ورڈ برہما کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ خالق ہوگا، پیدا کرنے والا۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ برہما کے معنی اگر خالق ہے، پیدا کرنے والا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ وہ مالک، وہ رب ہم سب کو پیدا کیا۔ لیکن جو ہی ہم برہما کو آکار دے دیں اور ایک روپ دے دیں تو یہ ہرگز قابل قبول بات نہیں ہوگی، اور یہ اس حساب سے بھی قابل قبول بات نہیں ہوگی جو انہی کی مذہبی کتاب جیسے سوتا ستارا اپنشد 4 نمبر کے ادھیائے اور 19 نمبر کے شلوک میں ہے، اور یجروید 32 نمبر کے ادھیائے اور 3 نمبر کے شلوک میں ہے نہ تسیہ پرتما استی، کہ اس کا کوئی آکار ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا۔ اسی جگہ پر رگ وید بک 2 ہم 1 شلوک نمبر 3 کے اندر ہے وشنو، دوسرا ایٹریبیوٹیو نیم، دوسرا گناتمک نام۔ وشنو کے معنی ہے چیریشر، سسٹینر، جو پالتا ہے، پالنہار۔ اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں عربی میں تو رب ہے۔ اگر رب ہم عربی میں جو سمجھتے ہیں پالنے والا، اسی کو سنسکرت کے اندر اگر وشنو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی آبجیکشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم وشنو کو آکار دے دیں
کہ وہ चिड़िए के ऊपर बैठा है और वो एक हाथ में वो पोंछ पकड़ा है, एक हाथ में डिस्कस पकड़ा है और एक रूप दे दे, तो यकीनन ये काबिल कबूल बात नहीं होगी, क्योंकि ये उनकी ही मजहबी किताब में है कि उसका कोई आकार नहीं है। जो आकार में पूजा करे तो वो घोर अंधकार में प्रविष्ट हो रहा है। उसी तरीके से दूसरी किताब में ऋग्वेद के अंदर दूसरी जगह पर यह है, चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 53, कि वो पैदा हुआ नहीं है, ना ही कोई उसको बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ऋग्वेद 8 नंबर के अध्याय 1 नंबर के चैप्टर और 1 नंबर के श्लोक में मां चिदन यदि संसद के वही एक है, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो और सारी प्रशंसा उसी के लिए है। ऋग्वेद 6 नंबर की किताब 45 नंबर के अध्याय और 16 नंबर के श्लोक में या इकत मुष्टि वही एक है जिसकी पूजा करो। और ब्रह्मा सूत्र जो हिंदुओं के नजदीक एक क्रीड के तौर पर है, कलमे के तौर पर है, एकम ब्रह्म दुस्त्या नास्ते निहा नास्ते नास्ते किंचन, कि एक ही ब्रह्मा है, एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो अगर हम हिंदुओं की मजहबी किताबों को देखें तो वहां से हमें साफ साफ मालूम होता है कि एक ऐश्वर्यवाद की बात उनकी भी किताबों में है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से पकड़ लें तो ये बात और जो इस्लाम में जो बात पेश की गई है उसके अंदर कोई फर्क नहीं। एक ऐश्वर्यवाद हिंदुओं की किताब में भी है, इस्लाम में भी है। एक कोई ईश्वर का कोई आकार नहीं, हिंदुओं की किताब में भी है और इस्लाम में भी है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरत ज़ारियात 51 नंबर की सूरत और 51 नंबर की आयत, फला तजअलू मा लाहि इलाहन आखर, तो तुम अपने पूजने के लिए उस इलाह के लिए कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट ना बनाओ। उस इलाह को पूजने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना बनाओ। इसी तरीके से हमें ख्याल रखना चाहिए कि उस अल्लाह को हम पहचाने कि वो अल्लाह कौन है, और उसी तरीके से अगर जब हम पहचान लेंगे तो हम हरगिज उसमें धोखा नहीं खाएंगे। और हम अल्लाह के अलावा किसी और को पूजें ये समझ करके कि हम उसको पहचानते नहीं, हम जानते नहीं, उसको देखे नहीं है और हम किसी और चीज को पूजें, तो ये कोई मानने जैसी बात नहीं है। मैं एक मिसाल से बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मान लो एक परदेश से एक शख्स जो है वो एक गरीब आदमी जो गरीब मुल्क में रहता है उसको हर महीने उसका खर्च उठाता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, खाने पीने का सारा खर्च उठाता है। अब ये शख्स जो बचपन से लेके जवान होता है, पढ़ लिख करके काबिल शख्स होता है, लेकिन उसने पूरी जिंदगी में उस शख्स को नहीं देखा जिसने उसको पूरी जिंदगी मदद की है। अब वो एक दिन ये सोचता है क्यों ना मैं फलाने फलाने शख्स कुमार को उसको थैंक यू करूं, उसको धन्यवाद करूं, शुक्र अदा करूं। तब वो सोचता मैंने तो देखा नहीं है, तो क्यों ना मैं उसका कोई रूप दूं, उसको कॉकरोच बनाऊं या अर्थवर्म बनाऊं या चिलचिट्टा बनाऊं, कुछ बनाऊं ऐसा आकार और उसका फोटो बनाऊं, उस पर हल्दी लगाऊं, कुकू लगाऊं और उसके सामने हाथ जोड़ के कहूं कि कुमार थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे हमेशा हर महीने मेरा खर्चा दिया, कितना अच्छा आदमी है तू, कितना भला आदमी है, तूने कितना ख्याल किया। तो अगर उस कुमार को ये मालूम पड़े कि ये आदमी जिसको मैंने पूरी जिंदगी मदद की, उसको हर महीने खर्चा दिया, अब वो शख्स मुझे नहीं देखा और उसकी वजह से वो मेरे लिए चिलचा कॉकरोच बना करके वो मुझे थैंक यू करता है, तो उसका कितना बड़ा इंसल्ट है। उसी तरीके से अगर उस कुमार और कॉकरोच के अंदर जो फर्क है, उस फर्क के वजह से उसका इंसल्ट होता है, उसी तरीके से उस खुदा का भी इंसल्ट है, क्योंकि उस खुदा और जो भी चीज दुनिया में है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो उस खुदा को हम चीजों जैसा कैसे बना करके पेश करें और उसको क्यों पूजें? इस तरीके से करने से उस खुदा का इंसल्ट है। मैं अपनी बात को उस आयत से खत्म करता हूं। सूरतुल हज 22 नंबर की सूरत 73 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह पाक पूरी इंसानियत के सामने ये पेश करता है, या युहन्नास, ए इंसानों, ए लोगो, ज़ुरिब मसल, मैं एक मिसाल पेश करता हूं, फस्तमिउ ला, तो जरा इसे सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह को छोड़ करके पुकारते हैं दूसरे को,
وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا له, اگر وہ سب اس بات پر ایک جٹ ہو جائیں کہ ایک مکھی کو پیدا کر دیں. اور اگر یسلبهم الذباب شیئا, اگر وہ مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر کے لے کے چلے جائے, لا یستنقذوه منه, اسے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کیسے کمزور ہیں جو مانگتے ہیں اور کیسے کمزور ہیں جس سے مانگا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. ETV اردو پر اگلا پروگرام نظر ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. کیجریوال حکومت کا آج امتحان, اسمبلی میں ثابت کرنی ہوگی اکثریت. انٹرن جنسی ہراسانی معاملہ, مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں نوٹ پر آج کیا جا سکتا ہے غور. صومالیہ میں خود کو حملہ, کم سے کم 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک. اور پراگ میں فلسطینی سفارتکار کی رہائش گاہ میں دھماکہ, سفیر جمال الجمال ہلاک, اہلیہ زخمی. اور اب خبروں کی تفصیل. دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت کے لیے آج اہم دن ہے. اروند کیجریوال کی حکومت چلے گی یا چلی جائے گی, یہ آج طے ہوگا. آپ کو آج اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنی ہے. سیاست میں روز ہلچل پیدا کر رہی دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت غیر یقینی کے سائے میں ہے. خود وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کی حکومت کتنے دن رہے گی یہ انہیں پتہ نہیں. اروند کیجریوال حکومت رہے گی یا نہیں, اس حوالے سے آج کا دن انتہائی اہم ہے. عام آدمی پارٹی حکومت آج اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. حالانکہ کانگریس کے اندر عام آدمی پارٹی کو باہر سے حمایت دینے کے معاملے میں ایک رائے نہیں تھی. کانگریس کب ہاتھ کھینچ لے اس کا بھروسہ عام آدمی پارٹی کو بھی نہیں, اس لیے وہ اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو جلدی جلدی پورا کرنے میں مصروف ہے. ادھر کانگریس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی حمایت عام آدمی کو جاری رہے گی. ہماری پارٹی کے بارے میں بالکل یہ اسپشٹ مت ہے ہمارا کہ ہم نے جو لیفٹیننٹ گورنر جی کو چٹھی لکھی تھی 13 دسمبر کو, کانگریس کا پکش ابھی بھی وہی ہے اور جب سرکار کا بہمت ہوگا تو ہم ان کے ساتھ ووٹ کریں گے. کیجریوال جی کو اپنی پارٹی کے ودھایکوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اگر ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے ودھایک بھاگ جائیں گے اس میں ہم لوگ نہیں, ہم لوگ کو کوئی قصور نہیں ہوگا. 70 رکنی دہلی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے 28 جبکہ کانگریس کے 8 ارکان ہیں, جبکہ بی جے پی اور اس کے حلیف شرومنی اکالی دل کے 32 اور جے ڈی یو کا 1 رکن ہے. آج اگر کیجریوال حکومت پہلے امتحان میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اس کے لیے مشکل کام ہوگا. عام آدمی پارٹی نے ایم ایس دھیر کو اپنا امیدوار بنایا ہے, جبکہ بی جے پی اپنا امیدوار اتارنے کی پوری تیاری کر چکی ہے. خیال ہے کہ بی جے پی کارگزار اسپیکر کا عہدہ ٹھکرا چکی ہے. بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز
उधर आम आदमी पार्टी हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। दिल्ली में बिजली के बिल में कटौती के बाद केजरीवाल हुकूमत ने रियासत को बिजली फराहम करा रही तीनों कंपनियों के ऑडिट के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए कैग ने रजामंदी जाहिर कर दी है। मंगल को केजरीवाल ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शशिकांत शर्मा से मुलाकात की थी और बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की अपील की थी। केजरीवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि ऑडिट के बाद दिल्ली में बिजली सार्फिन को सब्सिडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत मंगलमय हो। आज एलजी साहब ने बिजली कंपनियों के, तीनों बिजली कंपनियों के ऑडिट के ऑर्डर्स दे दिए हैं। सीएजी साहब ऑलरेडी ऑडिट के लिए कल तैयार हो गए थे, तो अब इन बिजली कंपनियों का ऑडिट, सीएजी ऑडिट शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर पड़ने लगा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संजय निरुपम ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतें कम करने का महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में निरुपम ने वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान को एक खत भी लिखा है। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसकी मिसाल महाराष्ट्र में नजर आती है। एआईसीसी के सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट संजय निरुपम ने महाराष्ट्र हुकूमत से दिल्ली की तर्ज पर रियासत में बिजली की शरहें कम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में संजय निरुपम ने रियासत के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान को एक खत लिखा और फौरी असर के साथ घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुतवस्सित तबका और सलम इलाकों में रहने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने मुतालबे की अदम तकमील पर एहतजाज की धमकी दी है। तो मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट बगैर अपने रेगुलेटर से कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं, बिजली दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने सरकार के खिलाफ और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। संजय निरुपम ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों की जानिब से अपनाए गए बिजली की लागत के ढांचा और कीमतों के मैकेनिज्म की जांच का भी मुतालबा किया। आज मैं देख रहा हूं कि टाटा और रिलायंस दोनों ने मिलजुल करके पूरे मुंबई में 3 गुना 4 गुना भाव, लगभग भाव उनका एक है, तो कहीं न कहीं कार्टेलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है कि दोनों कंपनियों ने मिलकर पावर सेक्टर में कार्टेलाइजेशन किया है क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए और ओवरऑल जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। संजय निरुपम का कहना है कि अगर कोई हुकूमत अवामी मफाद में अच्छा काम करती है तो दीगर हुकूमतों को इस पर अमल करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। लॉ एंड जिनसी हरासानी मामले में मरकजी काबीना आज कोई फैसला ले सकती है। आज मरकजी काबीना वजारत दिफा के जरिए तैयार किए गए नोट पर गौर कर सकती है। मीटिंग में अटॉर्नी जनरल जीई वानावटी के ख्यालात पर भी गौर किया जा सकता है। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की सह रुकनी जांच कमेटी ने एके गांगुली के रवैये को नाशाइस्ता करार दिया था, जिसके बाद वानावटी ने कहा था कि गांगुली के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अगर काबीना नोट को मंजूरी देती है तो उसे सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। उधर उड़ीसा में खाम लोहे और मैग्नीज के गैर कानूनी कानकनी पर जस्टिस एमपी शाह कमेटी की रिपोर्ट पर भी आज मरकजी काबीना गौर खौज कर सकती है। कमेटी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि उड़ीसा में गैर कानूनी कानकनी का धंधा जोरों पर चल रहा है, उसमें मुलविस लोगों की चांदी है, वो बेहिसाब पैसा कमा रहे हैं। कमीशन ने गैर कानूनी कानकनी से वहां के माहौलियात को पहुंच रहे नुकसानात की जानिब भी तवज्जो दिलाई है। कमीशन की मियाद 31 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। कमीशन की रिपोर्ट को अगर काबीना की मंजूरी मिलती है तो इसे पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पेश किया जा सकता है। नजर ईटीवी इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। फले फूले और मोहब्बत से बंजर रेत के इन टीलों को है किसी का इंतजार। आ गया है वापस वो अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए।
रंग रसिया, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, सिर्फ कलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। लोकपाल बिल को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ ही ये बिल अब कानून में तब्दील हो गया है। अब इसे वजारत कानून के लेजिस्लेटिव महकमे के सेक्रेटरी के पास भेजा जाएगा। सेक्रेटरी इस पर दस्तखत करने के बाद इसे सरकारी गजट में शामिल कराने के लिए भेजेंगे। 17 दिसंबर को राज्यसभा और उसके दूसरे ही दिन तरमीम शुदा लोकपाल बिल को लोकसभा ने मंजूरी दी थी। बिल का मकसद बदउनवानी की रोकथाम के लिए मरकज में लोकपाल और रियासतों में लोक आयुक्त का कयाम है। हुकूमत ने इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हुआ VVIP हेलीकॉप्टर सौदा मंसूख कर दिया है। सौदे में रिश्वतखोरी का मामला मंजरेआम पर आने के 1 साल बाद हुकूमत ने ये डील कैंसिल की है। हिंदुस्तान ने 3600 करोड़ रुपए के VVIP हेलीकॉप्टर मुआहदे को मंसूख कर दिया है। वजारत दिफा ने इतालवी कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 VVIP हेलीकॉप्टरों की खरीदी के लिए 2010 में एक मुआहदा किया था। रिश्वतखोरी के इल्जामात लगने के 1 साल बाद हिंदुस्तान ने यह डील मंसूख की है। इल्जाम ये लगाया गया था कि कंपनी के 2 आला अहदेदारों ने इस डील को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी अहदेदारों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले में फिजाइया के साबिक सरबराह SP त्यागी का नाम भी सामने आया था। CBI इस मामले की जांच कर रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इस डील में पाई जाने वाली खामियों को उजागर किया था। बताया जाता है कि वजीर दिफा AK एंटोनी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात के बाद ये मुआहदा मंसूख किया गया। मरकजी हुकूमत ने रिश्वतखोरी का मामला मंजरेआम पर आने के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में AW101 VVIP हेलीकॉप्टरों के कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया था। हिंदुस्तान की तरफ से 30% रकम अदा कर दी गई थी और मजीद 3 हेलीकॉप्टरों के लिए रकम अदा की जाने वाली थी, लेकिन रिश्वत का मामला सामने आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। वजारत दिफा ने इतालवी कंपनी को 2 वजह बताओ नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने कंपनी की दलील को मुस्तरद कर दिया। जराये का कहना है कि वजारत दिफा को बिचौलियों के कब्जे से बरामद बाज दस्तावेजात तक रसाई हासिल हुई थी। यही दस्तावेजात मुआहदे की मनसूखी का सबब बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज।
उधर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी का दावा है कि इसने सौदा हासिल करने के लिए गलत तरीका इख्तियार नहीं किया था। कंपनी का कहना है कि सौदे की मनसूखी के बारे में इसे वजारत दाखिला की जानिब से अभी कोई मकतूब नहीं मिला है, इसलिए इस सिलसिले में मजीद कुछ न कहना ही मुनासिब है। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वह आलमी सतह पर अपनी साख को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। कोलकाता में इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार लड़की की कल आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इससे कबल फौतशुदा लड़की के वालिदैन ने बाएं बाजू के लीडरों के हमरा मगरबी बंगाल के गवर्नर M.K. नारायणन से मुलाकात की और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। मुतासरा के घर वालों ने इनकी लड़की के साथ इंसानियत सोज हरकत करने वालों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन को अब यूपी पुलिस कानूनी शिकंजे में जकड़ने के हथकंडे अपनाकर कैंपों को खाली करा रही है। बेसरो सामानी की हालत में पड़े इन मुतासरीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इन्हें जबरदस्ती खदेड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि मंसूरा कैंप के 100 खानदानों के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ महकमा जंगलात ने एक कैंप के 270 खानदानों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मुजफ्फरनगर फसादात मुतासरीन फिरका परस्तों का निशाना बनने के बाद अब सरकारी हुक्काम का शिकार बने हुए हैं। यूपी हुकूमत ने फसाद मुतासरा 100 खानदानों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया है। फसाद मुतासरा 100 खानदान जिला शामली के मजाफात में वाक़े एक देहात मंसूरा में एक रिलीफ कैंप में मुकीम है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट S.K. सिंह ने बताया कि तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने 100 मुतासरा खानदानों के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई है। तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई है कि फसाद मुतासरीन अफराद ने सरकारी जमीनों पर ईंटों की दीवारें खड़ी कर ली हैं। दूसरी जानिब एक और रिलीफ कैंप में मुकीम 270 खानदानों के लिए भी बुरी खबर है। महकमा जंगलात ने 270 खानदानों को नोटिस जारी किया है और देहात की जगह को खाली करने की हिदायत दी है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब मुतासरीन के लिए इमदाद लिए जाने वालों को भी रोक दिया जा रहा है। यूपी हुक्काम एक तरफ ये जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के लुई कैंप के करीब इंस्पेक्टर KP शर्मा रिलीफ इमदाद लेकर पहुंचने वालों को वापस भेज रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद पूनावाला का कहना है कि लुई कैंप के अलावा दीगर कैंपों में अभी भी 100 खानदान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला के मुताबिक वो मंसूरा कैंप मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे तो इंस्पेक्टर KP शर्मा ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और शनाख्त मालूम करने के बाद कैंप की तरफ जाने से रोक दिया। जब इंस्पेक्टर से रोके जाने के बारे में तहरीरी जवाब तलब किया गया तो पुलिस ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। शहजाद पूनावाला के मुताबिक मकामी लोगों ने भी इंस्पेक्टर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर का रवैया एक मखसूस तबके के साथ इंतहाई जारहाना रहा है। इस रवैये की आला हुक्काम से शिकायत भी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। लेकिन मुजफ्फरनगर के DM कौशलराज शर्मा ने फसाद मुतासरीन को जबरदस्ती राहती कैंपों से हटाने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कौशलराज शर्मा का कहना है कि लोगों को एतमाद में लेकर ही कैंपों से हटाया गया है। मुजफ्फरनगर में एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि 41 कैंप जब चल रहे थे उनमें से लास्ट एक लोही कैंप बचा था। लोही कैंप एक ऐसा कैंप था जो पहले गांव में चल रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध स्वरूप 1 महीने से खुले में अपने टेंट्स लगा लिए थे। ये बहुत अनसेफ लोकेशन थी और किसी भी तरह ये प्रशासनिक कैंप नहीं था। हालांकि प्रशासनिक सुविधाएं दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार से जैसे मीडिया के माध्यम से भी और इंटेलिजेंसिया भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि लोग अनसेफ हैं। उसके बाद लोगों को परस्यू किया गया, जो मैनेजिंग कमेटी है उनको परस्यू किया गया, काफी लोगों को इसमें सोशल लोगों को जोड़ा गया। सबकी परसुएशन का रिजल्ट ये रहा कि वो लोग मान गए कि अनसेफ लोकेशन से सेफ लोकेशन में चले जाएंगे। तो काफी लोगों ने अलग अलग गांव में शरण ले ली। हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफर की थी, हालांकि कोई लोग उसमें नहीं आए, लेकिन काफी लोग वहां से हट के जाने लगे, तो बाकी लोगों में भी ऐसा माहौल बना और अल्टीमेटली वो कैंप भी के लोग भी वापस अपने घर चले गए हैं। काफी लोग अपने खुद के गांव में लौटे, काफी दूसरे गांव में लौटे। इसमें कोई भी फोर्स इवैक्यूएशन नहीं हुआ। करीब ये कैंप 1 महीने से चल रहा था। फोर्स इवैक्यूएशन करने की कभी भी नौबत नहीं पड़ी। बिहार में अक़लियतों की फलाह के नाम पर ऐलानात के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। यूं तो MSDP स्कीम के अलावा